So, Namaste, I am Chandan Kumar Mishra, again sharing you some important issues which could be used for discussion, panel discussion, or presentation or answer writing assignments. Instructions: each question carries equal marks, total time 3 hours, total marks 250. Try to answer each questions in 250 words. Use the Hindu newspaper, Dainik Jagran, National Edition course books, guide, Google search engine, and YouTube as reference study resource materials to solve these questions for answer writing, your speech or writing skill development, and public speaking practices assignments. Question: write an article about the benefits of humanitarian service oriented purpose in your life. अपने जीवन में अगर आप मानवीय सेवाओं के प्रति समर्पित होकर के काम करते हैं तो इसका क्या लाभ है, इसके बारे में एक आलेख लिखें. नंबर 2, यू कैन ट्रांसलेट दिस थिंग्स इन योर लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ट्रांसलेशन भी बढ़ाना जरूरी है क्षमता. हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद उनका आंसर दीजिए अपने आप से. Describe the important applicability of self-assessment practice to review the context of your life and take personal safety-related preventive and curative action. Number 3, describe that thought-stimulating writing should be considered as good article. Why? Number 4, elaborate that the provisions for the protection of the life as provided by the fundamental rights as per the Article 21 and Article 51 for fundamental duties of the Indian Constitution, international legal obligations under the Genocide Convention and directive orders of the International Court of Justice could be referred for excuse for abstention from the issues of disputes. Number 5, discuss about the relevance of publication of issues of personal nature in media of mass communication. Number 6, discuss about avenues of multinational partnership among the neighboring nations of the South China Sea and respectively for other sea territories, along with provisions for participation of other member nations of the United Nations as per the mandate and recommendations of the UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea. Next question. Describe that increasing social participation into the socio-cultural festive events dedicated to preserve and develop art and culture, language and livelihood of the deprived section of the society assures inclusive mainstreaming of the dissatisfied people into the social economic process of participatory democracy established by law to maintain the integrity of the country. Next question 8. Describe the role of academic writers, trainers, and media for shaping the personality of an individual and cultivate the culture of social coexistence to respect the values of unity in diversity among the fellow members of the society. Question 9. Debate to prove that applicability of representation of the stands of in-laws, medico legal service providers, caretakers, supporters, lawyers, advocates to be survived dependent of the accused person or entity with conflict of law, beneficiaries of the productive services of the person with conflict of law, and publication of human rights activists, social workers, and representatives of different concerned stakeholders are as per the legal accordance with international humanitarian law. Next question 10. Describe that the political party representative could only advertise about their political manifesto, but the fate of the election in democratic process is decided by the voters participating in election process. Question 11. Describe about the scope and utilities of implementation of the schemes dedicated to provide availability and accessible utility of the provisions of urban utilities in rural areas. Question 12. Write about avenues of women empowerment. Question 13. Write about the recently discussed terminology Environmental Green Manifesto. Question 14. If National Medical Services Authority (NAMSA) is established, operationalized, and managed as a specific body or established as per the specific act or policy, it would improve the regulatory role and service delivery for medical healthcare services properly. Discuss about a public interest litigation (PIL)
and way forward for its implementation. Next question 15. Analyze the given statement. Resources and stakeholders mapping for limited liability partnership company formation. Producers and processors of manufacturing items, hardware manufacturers, software developers, electricity providers, internet service providers, financial regulatory bodies, technical regulatory bodies, international regulatory bodies, United Nations and its organization, national government of the member nations, state governments of implementation sites, security providing organizations, knowledge partners, humanitarian services providing organizations, implementing human resources, associate partners, participating beneficiaries, God, investigation agencies, legal service providers. Assumptions. Distribute 5% equally among all 20 categories of 100%. If 1 rupee is divided by 1000, then there would be 0.1 paisa per share. Discuss the given statement. Next question 16. Guidance. You can use pen and notebook or type on your answer on your mobile messaging application or WhatsApp, email or Word at your laptop or computer to develop your written and typed assignments. You can use your answer to record your speech video with camera application or screen recorder application. Number 3. You can create your own YouTube channel and upload your video presentations there itself online. Discuss the relevancy and authenticity of the given statement. नेक्स्ट क्वेश्चन अहंकार पर नियंत्रण के मनोवैज्ञानिक सुझाव हैं. अहंकार पर नियंत्रण के मनोवैज्ञानिक सुझाव. आपकी आत्मा किसकी है? उत्तर परमात्मा की. बोलो जय अम्बे माता. नंबर 2. आपका शरीर कैसे जन्म लिया? उत्तर है आपके पिता के प्रजनन तंत्र के अंडकोश से उत्सर्जित एक कोशिका शुक्राणु ने आपकी माता की प्रजनन तंत्र के अंडाशय से उत्सर्जित एक कोशिका अंडाणु को अंडवाहिनी नली में निषेचित किया. यह जाइगोट उनकी गर्भाशय में भ्रूण बना. माता के रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़े अम्बिलिकल कोड द्वारा पोषण प्राप्त करके आपका शरीर आंगनबाड़ी, लेडी सुपरवाइजर, आशा, एएनएम एंड चिकित्सकों के उपचार द्वारा धरती पर जन्म लिया. बोलो जय जगदम्बे माता. नंबर 3. आपके शैशवावस्था में आपका लालन और पालन और पोषण स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे हुई? उत्तर है माता पिता, परिजन, पड़ोसी, समाज और चिकित्सा सेवियों ने की. बोलो जगन्नाथ जगदम्बिका की जय. अगला क्वेश्चन, आपको नाम किसने दिया? उत्तर माता पिता, परिजन, पड़ोसी, ब्राह्मण, समाज या चिकित्सा सेवियों या शिक्षा सेवियों ने दिया. बोलो नव दुर्गा की जय. नंबर 5. आपको बोलने, लिखने, सुनने, देखने, पढ़ने, याद करने, बात करने, नित्य कर्म, शौच, स्नान, खाना खाने, पानी पीने, उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, हंसने, रोने, खतरा से डर कर सुरक्षित रहने, अपनी शारीरिक परेशानियों को बताने एवं जीवन जीने की कला का ज्ञान किसने दिया? उत्तर माता पिता, परिजन, पड़ोसी, ब्राह्मण, समाज या चिकित्सा सेवियों या शिक्षा सेवियों ने दिया. बोलो सरस्वती माता की जय. अगला क्वेश्चन, आपको और आपके परिवार समाज को जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि किसने कराई? उत्तर आपके देश के केंद्र और राज्य सरकार के सेवा तंत्र के सौजन्य से आपके माता पिता, परिजनों, पड़ोसी, ब्राह्मण, समाज या चिकित्सा सेवियों या शिक्षा सेवियों ने दिया. बोलो नारद देव की जय. बोलो नारायण लक्ष्मी माता की जय. 7वां, आपको विभिन्न आपदा और विपत्तियों से बचाने के लिए सुरक्षा किसने उपलब्ध कराई? उत्तर शिव भक्त रक्षक सुरक्षक गणाध्यक्षों ने. बोलो गणानायक गणपति गणेश की जय. उपरोक्त कथन का या प्रस्तुति का आशय और मंतव्य प्रस्तुत करें अपने शब्दों में. अगला प्रश्न 18. गजाननम गुणाधिपति गर्जमुख की मातृभक्ति, गौरी द्वारपाल की वीरता ने जांच ली सभी देवों की शक्ति. जब शिव को शक्ति से मिलने से गणपति ने आज्ञावश अवरुद्ध किया, पत्नी और पति के बीच में पुत्र के आने से कुपित हो शिव ने गणेश से युद्ध किया. जब गणेश के गर्दन पर शिव त्रिशूल का प्रहार हुआ, सिर विच्छिन्न हुआ गणेश का और द्वार पर रक्तों का बौछार हुआ. जब उमा ने पति द्वारा पुत्र के वध का साक्षात्कार किया, तब उन्होंने अपने काली के विभत्स स्वरूप का विस्तार किया. तब देवों ने त्राहिमाम किया और बोला कैसी दुर्घटना घटी. तब गणेश के पुनर्जीवन के लिए विष्णु को एक युक्ति सूझी. विष्णु एक गज के सिर को जल्दी से काट कर लाए. शल्य क्रिया द्वारा देव चिकित्सकों ने तब गणेश को पुनः जिलाए. फिर से कैलाश में हर्षोत्सव का त्यौहार हुआ. देव सभा और सृष्टि में गणेश का जयकार हुआ. कालांतर में प्रथम पूज्य देव की प्रतियोगिता हुई. सकल ब्रह्मांड की यात्रा की चुनौती दी गई. सब देव अपने वाहन पर चढ़ यात्रा पर निकल पड़े. गणेश ने उमा शिव को बिठाया और अपने चूहा पर बैठ उनकी परिक्रमा की.
जब प्रतियोगिता के बाद परिणाम की विवेचना हुई, ब्रह्मदेव ने तर्क द्वारा गणेश के विजय की घोषणा की। आदिकाल से हर शुभोत्सव में सबसे पहले गणेश के पूजन का अनुष्ठान हुआ। गणेश जी को जिसने सरस्वती जी के साथ पूजा, धीरे धीरे वो सब बुद्धिमान हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय। उक्त पंक्तियों की अपने शब्दों में विस्तार से व्याख्या करें। अगला प्रश्न 19 हो गया। इसको समझें। इस दिए गए कथन के आधार पर आप चरित्र चिंतन कीजिए। 8/9/2024 किसी ने लिखा, जैसे मैंने अपना लिखा हुआ बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले उपन्यासों में लिखा था कि कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों में मैंने छल कपट को ही अक्सर महसूस किया। मेरे कहानियों के पात्र नायक में एक प्रेमी के एहसास थे, लेकिन उसे उसके किसी अज्ञात प्रभावशाली दुश्मन द्वारा बारंबार बदनीयत से फॉलो करने के कारण उससे मिलने जुलने वाली लड़की उससे प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करके उसके प्रभावशाली दुश्मन के पद, वर्चस्व और धन से लुभाकर उसको छोड़कर दूसरे के साथ अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते थे। मेरे उपन्यासों के मुख्य पात्र के रूप में चरित्र चित्रित वह व्यक्ति बारंबार चले जाने के कारण बहुत उदास रहता था। फिर भी मेरे लेखों में उसके द्वारा शायरी, गाने और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने शैक्षिक शोध के आधार पर जरूरी विषयों पर निबंध भी लिखे जाते और वह दुनिया समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए अपने वैज्ञानिक तर्कपूर्ण विचार पत्र भी प्रेषित करता रहता था। पिछले साल 22-24 के दौरान लिखे मेरे आलेखों में पाठक बंधुओं ने पढ़ा होगा कि मेरे उपन्यासों का वह नायक धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के साक्षात्कार के भी प्रयास करता है और वर्तमान की प्रमुख विश्वव्यापी समस्याओं जैसे भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, स्वास्थ्य समस्याएं, महामारी, सर्वांगीण शिक्षा, समावेशी विकास, शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था और कल्याणकारी आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए भी वकालत करता है। समाज में महिलाओं की दयनीय दशा को देखकर वह यहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत करता है कि महिलाएं अपनी यौनिक स्वतंत्रता को लेकर बिल्कुल बिंदास होकर उसका आचार लगाएं या भंडारा करें। चूँकि अपने कमज़ोर शरीर के कारण बचपन से ही स्त्रियों को उनके परिवार और समाज के सदस्यों द्वारा लैंगिक शोषण के खतरे रहते हैं और अक्सर पुरानी कानूनी प्रक्रिया के दौरान न्याय प्राप्त करने के दौरान स्त्रियों के दादा, नाना, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, भाई, पति, देवर, जीजा, जीजा के भाई, भाई, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई के भी जीवन पर खतरे की घंटी बजने लगती है। ऐसे में महिलाएं अपने जीवन में एक दो को मृत्यु दंड दिलाने के बाद मन भर जाने पर या अशोक की तरह विरक्त हो जाने पर हिंसा का मार्ग छोड़कर भी देती होंगी, है कि नहीं? या फिर बुद्ध जीसस क्राइस्ट के जीवन से करुणापूर्ण दया ममता की भावना से द्रवित होकर उदारता पूर्वक समाज सेवा का मार्ग भी अपनाती होंगी। आपने देखा होगा कि पोर्न फिल्मों और धारावाहिकों में पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक रूप और सौंदर्य वाली, विदुषी और उच्च पद पर काम करने वाली स्त्रियां द्वारा भी किसी पुरुष पर दया और मोहपूर्वक प्रेम प्रदर्शित करते हुए भगवान को बड़े आदर भक्ति से ओ माई गॉड पुकारते हुए अपने प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। आदिकाल से ही विख्यात है कि महिलाओं ने देश, काल और समाज की दिशा निर्धारित की है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा के अवतारों में भी वीरांगना के रूप में देवी ने यो माँ जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति यो में प्रतिबलालोके सामे भर्ता भविष्यति, अर्थात जो उन्हें संग्राम में जीत सकता था और जो उनके समान बलवती या बलवान होगा और जो उनके अहंकार को दमन कर सकता था, उसी से देवी दुर्गा शादी करती, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था। प्यार निवेदन के प्रस्ताव को ठुकराने के आदिकाल से अनेक साक्ष्य हैं। शिव ने बलपूर्वक दुर्गा को जीत लिया था। उसके बाद रामायण में भी शत्रुपा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, अहिल्या, अनसुईया, अंजना, रोमा, तारा, सुरसा, जाम्बवंती, केतकी और रावण बहू की भी प्रभावशाली भूमिका थी। उधर महाभारत में भी देख लीजिए तो गौरी, गंगा, मत्स्यगंधा, गांधारी, कुंती, देवकी, यशोदा, राधा, गोपियाँ, रुक्मणी, सत्यभामा, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, अग्निसेनी, द्रौपदी, सुभद्रा और फलनवा बहू, चिलनवा बहू ने भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। उधर मंथरा छूट गई थी रामायण के प्रसंग में। उसके बाद सरस्वती, लक्ष्मी, काली, मदालसा, पद्मा, मुरा, वैशाली, शिमुक, माद्री, लोपामुद्रा, अमाजू, सावित्री, ललावती, कलावती, गणिका, मंडन बहू, रजिया, लक्ष्मीबाई, निवेदिता, कार्नेलिया, लैला, हीर, सिरिंज एवं अन्य साहित्यों के प्रमुख पात्राओं ने भी इतिहास और साहित्य में अपनी छाप छोड़ी। आधुनिक काल में भी विश्व भर में अनेकों प्रभावशाली महिलाओं की गाथाएं प्रसिद्ध हैं। Beauty with brain of the subjected heroine of your love and romance may lead to your psychological madness and wealth drain. It's better to forget deceptive pain and keep your psychological emotional intelligence to retain and remain. Otherwise your efforts and labor would go in vain. मैं अपनी नानी महासुंदरी देवी की शांति और आत्मिक उत्थान के ईश्वरीय
भगवती से प्रार्थना करता हूँ। टू बी कंटिन्यू, टुम डुडुम डुडुम बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया। उसके बाद इसमें लिखने का बात है, 2021 के सितंबर में आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश के दिवंगत होने की खबर ने मुझे दुखी किया था। इसके बाद संक्षिप्त रामायण का संदेश भेजकर मैंने उस उल्टा से अपने किसी भी प्रकार के भविष्य के संपर्क की संभावना को नहीं मानते हुए मूव ऑन की राह अपनाते हुए आगे एकल तौर पर स्वयं अपने डिजिटल डायरी के रूप में स्वयं को प्रेषित अपने लिखने के अभ्यास को जारी रखा हूँ। अपने बाल्यकाल की यादों का पुनरीक्षण करता हूँ तो मैं स्वयं को अपने ननिहाल में खिलता पड़ता हुआ देखता हूँ। पहले अपने ननिहाल के ग्राम पोस्ट कुरकुरी, पालीगंज, पटना, बिहार में पीपल वृक्ष के पास स्थित घास फूस और मिट्टी के घर में बारिश के कुछ दिनों की याद आती हैं, जब नानी नाना द्वारा यजमनिका के दान से मिले अनाज लाते थे। नानी चावल से ढकनेसर बनाती और खेत से प्राप्त दाल सब्जी और गोपालन से प्राप्त दूध दही मक्खन घी मलाई से तृप्त रहता था। मिट्टी को गीले करके फुटबॉल की तरह बड़े लोंदा बनाकर सरकंडे के सहारे मिट्टी की दीवार बनाने में भी एक दो बार अपने नाना राम कमल पाठक की सहायता करता था। वह भी स्मरणीय है। बचपन में न तो मुझे दुनिया जहाँ की कोई जानकारी थी और न ही कोई फिक्र। अपना परिवार के साथ दुख सुख में बात किए, साथ रहे, खाना खाए पिए, कहानी सुनी, थोड़ी पढ़ाई की और सो गए। हम लोग ब्राह्मण हैं तो यजमनिका में स्वाहा यानी शुभ कर्मकांड जैसे रामनवमी के दिन ध्वजारोहण, सत्यनारायण व्रत कथा, बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, सोमवती अमावस्या व्रत कथा, जीवित पुत्रिका व्रत कथा, एकादशी महात्म्य व्रत कथा, हरितालिका तीज व्रत कथा, कर्मा एकादशी व्रत कथा, भतुआ दानी ऋषि पंचमी व्रत कथा, गंगा दशहरा व्रत कथा, मंडपाच्छादन, हल्दी कलश पूजन, घृतधारी, देव पूजी, जनेऊ, तिलकोत्सव, द्वार पूजा, विवाह कराने भी जाते। प्रत्येक चरण पर दक्षिणा तुरंत के तुरंत मिल जाता था। और स्वधा कर्म कांड में यानी कि मृतकों के परिजनों को भूत प्रेत के प्रभाव से बचाने के लिए किए जाने वाले गरुड़ पुराण पाठ, गीता पाठ, मंत्र द्वारा रक्षित द्वादशी श्राद्ध, नारायण बलि और गोदान श्राद्ध एवं बरसी के दौरान ब्रह्म भोज में अंगिया बीजे के बाद भोजन करने जाने पर दक्षिणा भी मिलता था। उसके बाद पान मिलता था और आदर्श यजमानों के द्वारा प्रणाम करने पर हम लोगों ने दुखों से उबर कर पुनः सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद भी देते थे। इसके साथ ही घर में ब्रह्मदेव की पूजा, चकिया गांव में शिव मंदिर में पूजा, तोरनी गांव में शिव मंदिर में पूजा और सालाना देवी पूजा भी कराने जाता था। छठ के पर्व के लोहरी के दिन भी सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते थे कुछ यजमान। विवाह के उत्सव में हल्दी कलश पूजन के दिन यजमानों के घर की महिलाएं उत्सव में खुश होकर हंसी मजाक भी करती थीं और कभी कभी मेरा गाल भी मैस देती थीं और हल्दी लगा देती थी, रंग पड़ा देती थी। शादी के गीत में भोजन करते समय विवाह गारी गीत भी सुनाती थी। उसके बाद लाला जी के दलान में राम कुमार मास्टर साहब, बलराम मास्टर साहब से पढ़ा, नेबुल मास्टर से भी पढ़ा था और श्यामदत्त मास्टर से भी पढ़ा। एक बार पढ़ने जाने के लिए मन नहीं था और श्यामदत्त मास्टर पकड़ने लगे तो भागने लगा था, तो कीचड़ की नाली में खुद ही कूद गया था। तो फिर मुझे घिन से नहीं छुए थे तो नहीं गया था उस दिन पढ़ने। सोती में नहाना अच्छा लगता था। एक बार पनडुब्बा से बचाया था एक किसान। खेत में धान की खेती से पहले मोरी की पौधशाला लगाई जाती थी। उसके बाद खेत को जोतने के बाद, पानी पटाने के बाद या पानी पड़ने के बाद भी खेत की जुताई करने के बाद निराई की जाती थी और फिर खेती की जाती थी। धान की फसल जब तैयार हो जाता था तो धान कटाई के समय या बाद में खेतों में चना, मूंग, केराव, खेसारी, काबुली चना के बीज छिड़क कर छोड़ देने और बाद में खाद डालने और सिंचाई करने पर फसल तैयार हो जाता था। अच्छा लगता था। बचपन में अपने लइकाई में ही खुश था मैं सबसे ज़्यादा। नेपथ्य को लेते हुए उपरोक्त व्याख्या के आधार पर लेखक द्वारा प्रस्तुत कथन के आधार पर एक चरित्र चित्रण कीजिए 250 शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट काउजेज, कंसिक्वेंसेज एंड डिजास्टर मिटिगेशन प्लान टू रिड्यूस रिस्क रिलेटेड विथ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट।